اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو جہاں ایک دوائی اور ایک میڈیسن کی نالج دے رہے ہیں، وہاں پریکٹیکل ایگزامپلس بھی پیش کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کی جو صحت مند ہو رہے ہیں، جو بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں ہمارے ذریعے، ان کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں موقع ملتا ہے مختلف لوگوں سے، مختلف ڈاکٹروں سے، مختلف لوگوں سے مل کے ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چینل کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نالج پرووائڈ کیا جائے، علم پرووائڈ کیا جائے، اور آپ لوگ اس علم کے ذریعے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں، اپنی فیملی کو کنٹرول کر سکیں۔ دراصل جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہم سے مراد بنی نوع انسان ہے، تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ وہ یہاں آ کر، دنیا میں آ کر چیزوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ انسان کی تربیت ہے۔ انسان کی تربیت اس کی ماں کے ذریعے، اگر ماں بہت اچھی، قابل اور ذہین ہے تو اس کے بچے یقیناً قابل اور ذہین ہوں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کے والد، پھر تیسرے نمبر پر استاد، پھر حلقہ بہاب جہاں وہ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ رہائش پذیر ہونے لوگ کے اثرات بھی اس پہ پڑتے ہیں۔ پھر جا کے اس بندے کی پروان چڑھتا ہے، پھر اس کی سوچ بلڈ اپ ہوتی ہے، اور پھر وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان نظر نہیں آتا، اس میں اخلاقیات کی کمی نظر آتی ہے، اس کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے جیسے 12:15 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں۔ اس میں محبت نظر نہیں آتی، پیار نظر نہیں آتا، خلوص نظر نہیں آتا، چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں انسان کی جو ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ اس کی صحت سے ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس کی تربیت سے ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تربیت ہم باڈی کی سے زیادہ روح کی کرتے ہیں۔ جب روح کی تربیت ہوگی تو باڈی روح کے مطابق چلتی ہے۔ آپ اندر جیسی سوچ رکھتے ہیں تو چہرے سے وہ سوچ عیاں ہوتی ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جیسا معاشرہ ہوتا ہے، اگر اس معاشرے میں علم کی کمی ہے تو اس کے بہت نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اس معاشرے میں حرص اور ہوس زیادہ ہے تو اس کے نقصانات زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اس معاشرے میں جھوٹ کا عمل ہے تو اس کے نقصانات زیادہ آتے ہیں۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغل خوری ہے، بے تحاشا یہ روح کی بیماریاں ہیں جو کہ باڈی پہ اثر پڑتا ہے۔ تو معاشرے کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے سے مراد میرا یہ ہے کہ وہ اچھی تربیت والے لوگوں میں بیٹھیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہو۔ ایز اے مسلم اگر ہم بات کرتے ہیں تو دین کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے مسلمانوں کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ آپ مسکراؤ، مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو چہرے پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاشی تنگی اس کا سبب ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طریقے سے حکومت مہنگائی پیدا کر رہی ہے تو یہ سبب ہے۔ ناظرین، سبب کم یا زیادہ ہوتے ضرور ہیں، اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے اہم سبب ہوتا ہے اس کی تربیت۔ تربیت کیسی ہے اس بچے کی؟
माँ बाप तरबियत कैसे कर रहे हैं? अगर माँ बाप खुश मिजाज हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुश मिजाज होंगे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़े लिखे होंगे। अगर माँ बाप शऊर रखते हैं, इल्म रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, एहसास रखते हैं, तो बच्चों में भी एहसास पैदा होगा, सूझबूझ पैदा होगी। माँ बाप के तौर से बच्चों की, मैं आपको अनकरीब एक बच्चे की मिसाल, बल्कि अपने ही बच्चे की एक मिसाल मैं आपको पेश कर दूंगा। पहले ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि आप लोग के इल्म में आए कि बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं। 2023 के अंदर चैनल की बुनियाद रखी। अगर तमाम दिन वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहे आप लोग, जहां हम बीमार हुए या जहां हमारे को नेट का प्रॉब्लम पेश आया या कोई और दूसरा प्रॉब्लम पेश आया, तो वहां वीडियो की सप्लाई रुकी। बाकी तो मुस्तकिल बुनियादों पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहे और इल्म देते रहे। बहरहाल, मैं जो अहाता कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस तरफ आ जाएं। बुनियादी मकसद तो मेरा हेल्थ ही है, टारगेट मेरा हेल्थ है। हेल्थ जितनी अच्छी होगी, अंदर जितनी सेहत अच्छी होगी, तो बाहर वो आया होगी। अब सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अमल दखल है। बहरहाल तरबियत का बड़ा अमल दखल है। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, फितरा, सदका, खैरात, ये सारी तरबियत का ही तो हिस्सा हैं। तरबियत करने पे, लेकिन तरबियत हो नहीं पा रही है सही तरीके से। उसकी वजह यह है कि तरबियत इस वजह से नहीं हो रही है कि वो जो हल्का इबाब जिसमें रह रहे होते हैं, वहाँ वो प्रॉब्लम्स के शिकार हैं। देखें, अगर खाना 3 टाइम नहीं है, अगर आप 1 टाइम खा लेते हैं और सब्र और शुक्र के साथ खा लेते हैं और मुस्कुराते हैं, तो ये एक अच्छी अलामत है तरबियत की। नंबर 2, आप 3 टाइम खाना खाते हैं लेकिन एहसास महरूमी का शिकार हैं, एहसास कमी का शिकार हैं, तो आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे, दिमागी तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे। देखिए, आपके पास 1 रुपया है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। 1 रुपया आपके पास मौजूद है, आप उस रुपये पे खुश व खुर्रम हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन इख्तियार करते हैं, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 99 रुपीज़ क्यों नहीं है, तो आप एहसास महरूमी के शिकार हो जाएंगे। तो एहसास महरूमी भी आपके अंदर, एहसास बरतरी भी आपके अंदर, एहसास कमी भी आपके अंदर। तो बेसिक तो तरबियत है। देखें, आपके पास एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है, आप उसको नहीं समझ पा रहे, नहीं नोट कर पा रहे, तो ये कमी आपकी हुई ना। लेकिन आपको मुश्किल से कहीं अमेरिका जाके, जर्मनी जाके, हॉलैंड जाके उस डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े, तो आप उसकी अहमियत को और ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि आप कितनी तकलीफ और परेशानी से उसके पास पहुंचे हैं। जो चीज़ आपके पास है, हमारा बताने का मकसद ये है, आप उस पर खुश खुर्रम हो जाएं, मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फेक्शन हो जाएं। इस बात से कतई ये मकसद नहीं ले लीजिएगा कि तरक्की वाले रास्ते रोक दें। नहीं, तरक्की आपने करनी है, जस्तजू आपने जारी रखनी है, इल्म अपना जारी रखना है, काबिलियत अपनी बढ़ानी है, हुनर अपना बढ़ाना है, सारे प्रोसेस करने हैं। लेकिन आपने सब्र और शुक्र इख्तियार करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, प्यार लाना है, खुलूस लाना है। बहरहाल, ये रूह की तरबियत है। अब आ जाते हैं जिस्म की तरबियत। माफ कीजिएगा। जिस्म जो है वो रूह की मरहम मिन्नत है। जब आपकी रूह की तरबियत अच्छी होती है तो वो जिस्म पे उसके असरात पड़ते हैं। अब जिस्म के बीमारी की बात करते हैं कि जिस्म जब बीमार हो रहा है तो वो ग़िज़ाओं से हो रहा है। जो ग़िज़ाएँ आपको मिल रही हैं, केमिकल वाली ग़िज़ाएँ आपको मिल रही हैं, अंडे जो आप खाते हैं मुर्गी के फार्म में, वो केमिकल से जल्दी उनको ग्रोथ करके जल्दी उसकी पैदावार बढ़ा के आपको खिलाए जा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से आपके अंदर केमिकल जा रहे हैं। जो वो केमिकल आपके पास जा रहे हैं, तो इसी तरीके से सब्जियां हैं, इसी तरीके से फल फ्रूट हैं, स्प्रे होके आ रही हैं, फलां कीड़े मार स्प्रे करके
और वो आपके मिलती हैं, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से आपके पेट के अंदर जा रही हैं। अब आप बीमार पड़ते हैं तो फिर उन्होंने इसका हल भी केमिकल दवाइयों का रखा, यानी केमिकल दवाइयों से आपका इलाज करते हैं। अब आपको हर तरीके से केमिकल की मार लग रही है। जब आपको केमिकल की मार लगती है तो फिर उससे होता यह है कि आप शुगर के पेशेंट, हेपेटाइटिस के पेशेंट, गुर्दे के पेशेंट, तिल्ली के पेशेंट, लबलबे के पेशेंट, पूरी बॉडी के पेशेंट बन जाते हैं और पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तरफ से आपको इस तरीके से मसले मसाइल का दो चार है, दूसरी तरफ से तरबियत का मसले मसाइल का दो चार है। नाजरीन, ग़िज़ा बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जो चीज़ आप अपने मुंह में खाएं बड़े सोच समझ के खाएं, बड़े गौर व खोज से खाएं, बड़ी तवज्जो के सोच समझ के कि ये मेरे लिए मुफीद है या नहीं है, इस वक्त ये मेरे लिए मुफीद है। किसी वक्त में दही की अहमियत होती है, दही खाना चाहिए, किसी वक्त में दही की अहमियत नहीं है, किसी वक्त में दूध की अहमियत ज़्यादा है, किसी वक्त में दूध की अहमियत नहीं है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपके हालात पे डिपेंड करेगा, आपकी आपकी कैफियत पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैफियत क्या है। एक कैफियत ऐसी है कि आपको शहद मुफीद है और एक कैफियत ऐसी है कि आपको शहद मुफीद नहीं है। तो आपको इसका भी इल्म होना चाहिए कि आप जो हैं वो आप जो हैं वो क्या-क्या मतलब ऐसा खाएँ जो आपकी सेहत बरकरार रहे। मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको तरबियत के हवाले से एक वीडियो आपको पेश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आज का जो मौजू था 2 चीज़ों पे आप डिपेंड करा कि एक रूह के लिए, तरबियत के लिए और दूसरा ग़िज़ाओं के लिए। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं और नाज़रीन इस पे आप गौर करें और तवज्जो दें। दवाइयाँ हम आपको बता रहे हैं, इल्म भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज भी आपको दे रहे हैं। जैसे-जैसे आपको हमारी वीडियो आप देखते जाएँगे, आप में ज़हनी सलाहियत बढ़ेगी, अपग्रेडेशन बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी सेहत के बारे में आपके इल्म बढ़ेगा। एक अल्लाह ताला का करोड़ों लामहदूद शुक्रिया है कि एक समंदर की मानिंद इल्म हमारा होता है, तो हम उसमें से आपको वक़्तन-फ़वक़्तन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि जब अल्लाह ने दिया है, तो हम बाँटें क्यों नहीं? इसी वजह से हम आप लोगों को बाँट रहे हैं और आपको दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इससे इल्म हासिल करें, शऊर हासिल करें, सूझ-बूझ हासिल करें, एक-दूसरे के लिए एहसास पैदा करें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ, अच्छी सेहत बरकरार रखें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, खुलूस जानें, पहचानें। बहरहाल अल्लाह आपको खुश-व-खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे, हिम्मत और ताकत दे, जुस्तजू दे, लगन दे। अल्लाह हाफ़िज़।